ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی فلاحی اسکیمات سے مستحق عوام کو فائدہ پہنچایا جائے، عہدیداران خاص توجہ دیں، ضلع کلکٹر ہنمنتو۔ دینی اجتماع اللہ سے خیر حاصل کرنے کا ذریعہ 19، 20 اور 21 جنوری کو نظام آباد CRPF کیمپ گراؤنڈ پر تبلیغی جماعت کا 3 روزہ دینی اجتماع، تیاریاں تقریباً مکمل، فرزندان توحید سے شرکت اور مہمانوں کی نصرت کی اپیل۔ MIM کی مؤثر نمائندگی، سلم عقیدتی علاقوں میں 2 ریشن شاپس کی منظوری، MIM کا کارنامہ، MIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی و ضلع کلکٹر سے MIM کا اظہار تشکر، عوام کو راحت، عوام میں مسرت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی اسکیمات کو اس ماہ کی 20 تاریخ تک مکمل کر لیا جائے اور فلاحی اسکیمات سے مستحق عوام کو مستفید کرانے کے لیے عہدیدار حکومت کے رہنمایانہ خطوط کی پابندی کریں۔ ضلع کلکٹر کا فیلڈ لیول پر عہدیداران کے ہمراہ تصدیقی عمل کا تفصیلی جائزہ دی ہدایتیں۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے جمعے کے روز فیلڈ سطح پر عہدیداروں کے ذریعے کیے جا رہے فیلڈ تصدیقی عمل کا معائنہ کیا تاکہ وہ ان عوام کو فائدہ پہنچا سکیں جو ریتو بھروسہ، اندرما مکانات، فوڈ سیکیورٹی اور اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیموں کے ذریعے مستفید ہو سکیں۔ سروے ٹیموں نے مفکال منڈل، ناگمپیٹ، بالکنڈا منڈل جلال پور اور آرمور منڈل فتح پور دیہات میں فیلڈ لیول آبزرویشن کا معائنہ کیا۔ مختلف فلاحی پروگراموں کے نفاذ کے لیے اہل افراد کی شناخت کے لیے استعمال کیے گئے طریقوں اور سروے ٹیموں کی طرف سے گھر گھر جا کر جمع کی گئی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ جلال پور کے نواحی علاقوں کے متعلقہ سروے نمبروں میں کسانوں کی پٹے اراضی اور تفویض کردہ جگہوں کی جانچ کی گئی اور افسران سے تفصیلات معلوم کی۔ کلکٹر نے ہدایت کی کہ فیلڈ انسپیکشن کے دوران جمع کی گئی تفصیلات کو رجسٹر میں واضح طور پر درج کیا جائے۔ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ تصدیقی عمل کو تیزی سے مکمل کریں اور بغیر کسی غلطی کے شفاف طریقے سے مستحقین کی فہرست تیار کریں۔ اس موقع پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر کے تمام دیہاتوں میں فیلڈ ویریفیکیشن جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ریتو بھروسہ اسکیم کے ذریعے سروے نمبروں کے مطابق فیلڈ لیول معائنے کے ذریعے قابل کاشت زمینوں کا پتہ لگایا جائے تاکہ ہر اہل کسان کو فائدہ پہنچا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح اتھارٹی کی ٹیمیں حکومتی رہنما خطوط کے مطابق فیلڈ لیول معائنہ کریں تاکہ اہل خاندانوں کو فوڈ سیکیورٹی کارڈ فراہم کیا جا سکے۔ اس ماہ کی 20 تاریخ تک اسکیموں کے تحت اہل افراد کی فہرستیں تیار کر لی جائیں اور 21 سے 24 تاریخ تک انہیں گرام سبھا میں متعارف کرایا جائے گا اور انہیں پڑھ کر سنایا جائے گا جو MPDOs، تحصیلداروں اور منڈل اسپیشل آفیسرز کی نگرانی میں منعقد ہوں گے۔ گرام سبھا کی منظوری کے مطابق استفادہ کنندگان کی تفصیلات متعلقہ پورٹل میں درج کی جائیں گی۔
कलेक्टर ने कहा कि इस माह की 26 तारीख को हुकूमत इस्तीफादा कुनिंदान को फायदा पहुंचाने के लिए रैतु भरोसा, इंद्रमा मकानात, फूड सिक्योरिटी और इंद्रमा आत्मीय भरोसा स्कीमों पर अमलावरी शुरू करेगी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आर्मूर आरडीओ राजागौड़, मुतल्लिका मंडलों के स्पेशल ऑफिसर श्रीवंती रसूल बी, बालकोंडा एमपीडीओ विजय भास्कर रेड्डी, तहसीलदार श्रीधर दीगर भी मौजूद थे। చేసి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రైతు భరోసా మరియు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ గురించి సర్వే అనేది చేస్తూ ఉన్నాము. సో రైతు భరోసాలో మనకి ఏవైతే నాన్ ఏరబుల్ ల్యాండ్స్ అంటే వ్యవసాయానికి యోగ్యం కాని ల్యాండ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడము, అదేవిధంగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ మన డేటాని కూడా ఫీల్డ్లోన వాళ్ళ ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషను, అదేవిధంగా మనకి ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉందో దాని ప్రకారంగా పంచాయత్ సెక్రటరీస్ కూడా మనకి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రక్రియ మనము 20th వరకు కంప్లీట్ చేసుకొని 21st నుంచి 24th వరకు గ్రామ సభలు కూడా అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లోని తహసీల్దార్సు, ఎంపీడీఓస్, మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో చేసుకున్న తర్వాత 26th గవర్నమెంట్ ఆదేశాల ప్రకారము ఈ 4 స్కీమ్స్ కూడా మన జిల్లాలో కూడా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। ओहदेदारान व ठेकेदार सीसी सड़क और ड्रेन के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और उसे अवाम के लिए दस्तयाब करें, एमएलए ने दिया हुक्म। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद शहर में शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। सबसे पहले एमएलए ने 35वें डिवीजन शिवाजी मुजस्मा जैन मंदिर, 36वें डिवीजन छत्रपति हनुमान मंदिर, 37वें डिवीजन अंबेडकर कॉलोनी एससी संगम और 43वें डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि 14वें फाइनेंस के जरिए हर डिवीजन को 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इसी के तहत शहर के कई डिवीजनों में तरक्याती प्रोग्रामों में सीसी रोड और नकासी आपके तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। ठेकेदारों और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी ताखिर के मियार के साथ सीसी सड़क और नकासी आपके कामों को मुकम्मल करें और उन्हें अवाम तक रिसाई के काबिल बनाएं। निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए 100 करोड़ की मंजूरी के मकसद से हल्के की तरक्की की जाएगी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सुधीर, मास्टर शंकर, रानी, सरस्वती रेड्डी, उमा रानी दीगर भी मौजूद थे। గౌరవ మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు పాల్గొనడం జరిగింది. 35వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ సుధీర్ ఆధ్వర్యంలో, 36వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ మాస్టర్ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో, 37వ డివిజన్ ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ ముత్యాలు ఉమారాణి కార్పొరేటర్, స్థానిక కార్పొరేటర్ మరియు ఇతర పెద్దలు, ఇక్కడ గల్లీ పెద్దలు, మాజీ కార్పొరేటర్ సహదేవ్ మరియు జ్యోతి గారు మరియు బొట్టు వెంకటేష్ గారు, టెంట్ శ్రీను, ఇతర డివిజన్ సోదర సోదరిమణులకు ఈ శుభ సమయాన అందరికీ శుభాకాంక్షలు. గత 2 నెలల క్రితము లాస్ట్ మంత్ వరకు 10 లక్షల రూపాయలు మున్సిపల్ నుండి జనరల్ ఫండ్ తోటి ప్రతి డివిజన్లో రోడ్లు వేయడం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే 14th ఫైనాన్స్ మిగులు నిధులతోటి ప్రతి డివిజన్లో 10 లక్షల రూపాయల రోడ్డు డ్రైనేజ్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. మళ్ళీ రేపు కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది, దాంట్లో కూడా ప్రతి డివిజన్కు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सलम इलाकों में राशन चावल सेंटर्स के क़याम की राह हमवार। बैरिस्टर ओवैसी जिला कलेक्टर से निजामाबाद मजलिस यूनिट का इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को अरसाल करदा मकतूब और अक़लियती गुंजान आबादी वाले इलाकों में राशन शॉप्स के क़याम के लिए तवज्जो मबसूल कराने पर जिला इंतजामिया ने अक़लियती इलाकों में 2 सेंटर पॉइंट कायम करने के लिए ओहदेदारों ने निशानदेही की। इस खुसूस में जिला कलेक्टर की हिदायत पर आरडीओ निजामाबाद राजेंद्र कुमार ने नॉर्थ और साउथ तहसीलदारों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन के हमरा
डिवीजन 11, 12, 13 इलाकों की आवाम के लिए डिवीजन 12 ड्राइवर कॉलोनी में राशन चावल की तकसीम के लिए सेंटर पॉइंट कायम करने और डिवीजन 13 और 14 की आवाम के लिए अकबर बाग डिवीजन 14 में राशन सेंटर पॉइंट के क़याम की निशानदेही की गई और अगले माह से इन मराकज़ पर बाकायदा तौर पर राशन चावल सरबराह किया जाएगा। शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले डिवीजनों में गरीब मुस्तहिक़ अवाम राशन कार्ड दहनगान के लिए राशन चावल हासिल करने, राशन शॉप्स ना होने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन ने बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी की थी और सदर मजलिस के मकतूब को जिला कलेक्टर को पेश करते हुए इन इलाकों में 3 राशन शॉप्स कायम करते हुए गरीब अवाम को सहूलत पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। इन इलाकों की अवाम को राशन चावल के हुसूल के लिए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फासला तय करने और सवारी खर्च के बोझ को मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमर टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर रिशाद अली समीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागवान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने जिला कलेक्टर से इजहार तशक्कुर करते हुए आरडीओ ऑफिस पहुंचकर आरडीओ राजेंद्र कुमार की शालपोशी व गुलपोशी की। पिछले 2-3 महीने से जो जद्दोजहद चल रही थी राशन दुकानों और जो फेयर प्राइस शॉप, खुसूसन स्लम माइनॉरिटी जो एरिया है वो वहाँ पर जो लोगों को तकलीफ हो रही थी, उस ज़िमन में जो चावल वगैरह लाने करने के वास्ते उस ज़िमन में हम लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम के पास जाकर ये तमाम हालात का जायजा दिए कि यहाँ पर गरीबों को खुसूसन बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। चावल जो गरीब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको, क्योंकि दुकान ये जो फेयर प्राइस शॉप जो राशन के दुकानात हैं यहाँ से बहुत काफ़ी फासले पे थे, तो उस ज़िमन में असदुद्दीन अवैसी साहब बाज़ात खुद कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात की और एक लेटर, तहरीरी लेटर दिया कि ये जो लोगों का जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो बहरहाल इस दरमियान कई तातीलात आए, तो आज फिर से हम आरडीओ साहब से मुलाकात की। आरडीओ साहब ने हमारे 2 एमआरओ साउथ और नॉर्थ दोनों को भी भिजाकर जो जहाँ पर ये जो सर्विस सेंटर जो दुकान राशन सप्लाई होने वाला है वो चीज़ का, उस मलगी का, वहाँ के एरिया का जायजा लेने के लिए, हालात तमाम देखने के लिए भिजा और एमआरओ साहब ने आके बाज़ात खुद लेके सेटिस्फाई, हमको लगता है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों को जो तकलीफ हो रही थी चावल वगैरह लेने के लिए गवर्नमेंट के जो राशन दुकान पे मिलते हैं, तो वो लोग आके गए। आज उनके साथ हम MIM निज़ामाबाद यूनिट भी साथ में, जिसमें तमाम ही लोग साथ में थे, उनको तमाम चीज़ों का यहाँ पर बताया, क्योंकि यहाँ पर हेवी ट्रक्स आने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड भी बड़े हैं और लोगों को सहूलत होंगी। मेन चीज़ एक्चुअली क्या है, लोगों को जो चावल गरीब लेते हैं उसके लिए बहुत सहूलत होगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने में ये जो सप्लाई होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर अकबर बाग में एक यूनिट है और अपना ये जो वेंटर कॉलोनी का जो हिस्सा, एक बड़ी जो रोड है स्लाटर हाउस को और ईदगाह को जो जोड़ती, वहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सप्लाई होगी यहाँ से गरीब लोगों को जो चावल दिया जाता है वो यहाँ से सप्लाई होगी। आप लोगों को दूर दराज जाके अब लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप जैसा ही घर से बाहर निकलेंगे आपके सामने दुकान रहेंगी। मैं ये जो तमाम जो छोटी मोटी जद्दोजहद थी इसमें तमाम हमारे तमाम कारपोरेटर सीनियर कायदीन जो मिलके आरडीओ साहब से, कलेक्टर साहब से और तमाम लोगों को 12 ये नुमाइंदगी करते रहे, तो वो उसका समर आज हमको मिल रहा है। आज एमआरओ साहब भी आके जायजा ले के चले गए और सेटिस्फाई है कि वो ये यहाँ जो शॉप है ये शॉप पे दे सकते हैं। बल्कि ये जो पेंटर कॉलोनी का जो शॉप है उसका आता ये अपने जो डिवीजन नंबर 11, 12 और 13 का कुछ हिस्सा, ये तमाम यहाँ के मकीन लोग, यहाँ के गरीब लोग यहाँ से चावल पिकअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अकबर बाग में जो पॉइंट बनाया गया है ये चीज़ को नज़र में रख के बनाया गया है कि डिवीजन नंबर 14 के और डिवीजन नंबर 31 के जो लोग हैं वो दोनों वहाँ से चावल दस्तियाब उनको रहेगा, करीब से करीब होगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए कि ये 2 पॉइंट का आज एमआरओ साहब ने जायजा लिया
इस ज़िमन में निज़ामाबाद MIM यूनिट खुसन पिछले 2 साल से जो हम जद्दोजहद कर रहे थे वो आज कामयाब हुई। उसके लिए हम सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कभी भी हम अवामी मसाइल लेके जाते हैं तो वो बड़ी दिलचस्पी से वो काम को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं और हमको राग़िब भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाई। RDO साहब को जब भी ये इस ताल्लुक़ से ऑर्डर दिए कि जाओ जाके तमाम चीज़ का जायज़ा लो। बहरहाल कलेक्टर साहब, RDO साहब, MRO साहब जो भी लोग इसमें ऑफिशियली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये यहाँ पर सर्विस सेंटर जो चावल दिया जाता है गरीबों को वो इसमें आवाम की सब बेहतरी के लिए उनका ताउन के लिए हम फिर से एक शुक्रिया अदा करते हैं। 19, 20 और 21 जनवरी को तबलीगी जमात का CRP कैंप में दीनी इज्तिमा के दौरान अकाबरीन व उलमा इकराम की खुसूसी खिताबात होंगी। इस तबलीगी इज्तिमा से इस्तिफादा करें। 19 जनवरी का 21 जनवरी CRP कैंप सारंगपुर बोधन रोड इलाके में मुनाकिद होने वाली तबलीगी जमात की इज्तिमा की तैयारियां उरूज पर कई एकड़ अराजी पर तमाम सहूलतों की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर फरजंदान इस्लाम गुज़िश्ता कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। निजामाबाद जिले के अलावा कई पड़ोसी अजला से हजारों फरजंदान तौहीद की इज्तिमा में शिरकत यकीनी है। से रोजा दीनी इज्तिमा में अंदाजा लगाया जा रहा कि ज़ायद 50,000 तक 60,000 फरजंदान इस्लाम शिरकत करेंगे। 21 जनवरी को इख्तितामी दिन खुसूसी दुआ में शिरकत की गर्ज से मज़ीद हजारों मुसलमान शरीक होने का इम्कान है। तबलीगी जमात के इज्तिमा में इख्तिताम पर रिक्कत अंगेज दुआएं की जाती हैं। इज्तिमा में शरीक फरजंदान इस्लाम आंसुओं की बहती खतारों के साथ आमीन की सदा बुलंद करते हैं। रोते हुए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी जाती है। इज्तिमा के दौरान अकाबरीन व उलमा इकराम के खुसूसी खिताबात होंगे जिसमें दुनिया और मुल्क में मोहब्बत को आम करने और नफरतों को खत्म करने और भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा। से रोजा के इज्तिमा के शुरू होने वक्त और इज्तिमा के इख्तिताम के बाद कई घंटों तक इज्तिमा गाह से नज़्म ज़ब्त के साथ रवाना होने वाले पैदल और गाड़ियों के काफिले के पुरस्सर मनाज़िर। CRP कैंप में तबलीगी इज्तिमा के लिए कई वज़ूखाने तामीर किए गए हैं। एक ही वक्त में सैकड़ों अफराद वज़ू कर सकते हैं। कई ताम खाने कायम किए गए जहां एक ही वक्त में कसीर तादाद में तनावुल व ताम का नज़्म रहेगा। 19, 20 और 21 जनवरी को तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करें। 9 साल बाद जिला निजामाबाद में तबलीगी इज्तिमा मुनक्किद हो रहा, इस्तिफादा करें। 14वें फाइनेंस के तहत 31वें डिवीज़न में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी। 10 लाख की लागत से CC सड़क के तामीरी कामों का आगाज। इफ्तिताई तकरीब में मेयर, डिप्टी मेयर व MIM कॉरपोरेटर्स व कायदीन की शिरकत। मुकामी अवाम ने MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर 31वें डिवीज़न मुनव्वर अली की खिदमात को बताया काबिल सताइश और तहनीत पेश की। 14वें फाइनेंस के तहत मंजूरा 10 लाख की लागत से CC सड़क के तामीरी कामों का 31वें डिवीज़न में आगाज अमल में आया। तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर MIM फयाजुद्दीन, टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल व दीगर कॉरपोरेटर्स, कायदीन व अराकीन के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 31वें डिवीज़न MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने वालहाना इस्तकबाल किया। शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मेहमानान ने सड़क के तरक्याती कामों का आगाज़ किया और गुत्तेदारों को मियारी और वक्त मुकर्ररा पर कामों को पूरा करने की हिदायत की। इस मौके पर डिवीज़न 31 में इन 5 सालों में अंजाम दिए गए मिसाली तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया और मसरत व इत्मीनान का इजहार किया। MIM कायदीन ने बताया कि MIM ने बल्दी इंतखाबात में अवाम से किए वादों को पूरा किया और सलम अक़लियती इलाक़ों को तरक्की पजीर मॉडल डिवीज़न में तब्दील करने का सहरा MIM को जाता है और हमेशा गरीब मजलूमों के साथ इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली जमात MIM है। मुनव्वर अली की मिसाली खिदमात पर अवाम ने उन्हें तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में शेख अनवर, शेख फयाज, हाफिज साहब, MD अवैस, अब्दुल रज़ाक, कलीम साहब, सैयद मोहसिन, शेख बाबू भाई, डॉक्टर MD इम्तियाज़, MD ख्वाजा, सैयद इदरीस, MD इमरान, MD यूसुफ, फरहान,
असगर भाई, रसिया सुल्ताना, नासिमा परवीन, इम्मू, अमर फारूक, सोहेल चौश, शमशू, आसिफ, अनवर, जावेद फर्नीचर व दिगर भी मौजूद थे। बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र ट्रैफिक को कंट्रोल करने, अवाम और गाड़ी चलाने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करने के लिए मेडिकवर हॉस्पिटल की जानिब से तकरीबन 5.5 लाख मालियत के बैरिकेड्स महकमा पुलिस के हवाले किए। मेहमान खुसूसी ACP नारायणा ने इस तकरीब में की शिरकत और ताउन पर अस्पताल की सताइश की। निजामाबाद शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल के बाशुक्रिया अवाम की सहूलत के लिए बड़े चौराहों पर लगाए जाने वाले बैरिकेड्स को ट्रैफिक ACP के हवाले किए। शहर के हैदराबाद रोड पर महकुमा बैरूनी मरीज में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस को 50 बैरिकेड्स हवाले किए। ट्रैफिक ACP नारायणा ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये बैरिकेड्स मेडिकवर आउट पेशेंट अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अस्पताल के सरबराह ACP नारायणा के हवाले की। इस मौके पर खिताब करते हुए ट्रैफिक ACP नारायणा ने शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मेडिकवर अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से फराहम किए गए ताउन की सताइश की। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक CI प्रसाद, SI ट्रैफिक अमला, मार्केटिंग हेड विनय कुमार, अस्पताल अमला दिगर भी मौजूद थे। ట్రాఫిక్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి వాళ్ళు మనకి 50 స్టాపర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా స్టాపర్లు మేము ట్రాఫిక్ నిజామాబాద్ పట్టణంలో ట్రాఫిక్ రెగ్యులేట్ చేసుకోవడానికి నిజామాబాద్ పట్టణంతో పాటు ఆరుమూరు మరియు బోధన పట్టణాలు కూడా వీటిని ఉపయోగించుకుంటాము. ఇంతకుముందు గతంలో కూడా మనకి CMR వాళ్ళు, HDFC లైఫ్ వాళ్ళు కొన్ని స్టాపర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా కూడా నిజామాబాద్ నగరంలో ఇలా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తే మరి ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి సేవలు అందిస్తే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మరికొంతమంది ముందుకు రావాలని మరి ఇప్పుడు మాకు 50 స్టాపర్లను మాకు ఇచ్చినందుకు వారికి మా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది తరఫున మా పోలీస్ శాఖ తరఫున వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. रियासती हुकूमत गरीबों के लिए अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इंदिरमा मकानात फ्राहम कर रही ओहदेदारान मुस्तहिक़ीन के इंतखाब को शिफाफ बनाए। साबिक़ा वज़ीर व बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने इंदिरमा स्कीम के तहत मॉडल हाउस की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम गरीबों को अक़सात में घर दिए जाएंगे। ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर शिफाफ तरीके से मुस्तहिक़ीन का इंतखाब करें। उन्होंने मशवरा दिया कि पुलिस अफसरान जमीन के मसाइल में मुदाखलत ना करें। MLA ने इंतबाह दिया कि अगर कोई हक़ाइक़ पर गौर किए बगैर एक तरफा कार्रवाई करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहन, रजिता यादव, भास्कर रेड्डी दिगर कायदीन मौजूद थे। హౌస్ బిల్డింగ్గా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం అవసరం ఒకవేళ అది ఫైనలే కానీ అవసరం ఉంటే చేంజ్ చేసుకోవడానికి మోడల్ బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నాం. అందరూ కోఆపరేషన్ చేయాలి. గత ప్రభుత్వాల లెక్క ఉన్నోళ్ళు తీసుకుని గరీబులను వదలకుండా ఏదైతే బీద వాళ్లకు కనీస సౌకర్యాలు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ ప్రణాళిక చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి అందరూ అధికారులు కానీ నాయకులు కానీ ఏదైతే థర్డ్ పాలు వేసుకుని ఉంటున్నారో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ వాళ్ళకు వస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. అధికారులు తప్పులు చేస్తే మట్టుకు యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ కూడా आरमूर के वार्ड नंबर 28 सईदाबाद मोहल्ले में वेलकम खुश आमद बोर्ड नस्ब करने के लिए कामों का संगी बुनियाद रखा गया। कई साल बाद कॉलोनी की आवाम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ। आरमूर के वार्ड नंबर 28 सईदाबाद मोहल्ले में वेलकम खुश आमद बोर्ड नस्ब करने के लिए आमीना मस्जिद के इमाम अनीसुर रहमान की तिलावत से कामों का आगाज करते हुए संगे बुनियाद रखा गया। वाज़ेह है कि आरमूर शहर की सबसे कदीम वो पहली लेआउट प्लाट कॉलोनी जो मरहूम अली मोहसिन हज़मी की जानिब से बसाई गई थी, उनकी निशानदेही के तौर पर मोहल्ले सईदाबाद कॉलोनी की आवाम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ। सईदाबाद कॉलोनी की तमाम आवाम और सईद बिन अली हज़मी की क़ियादत में नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक सईदाबाद की खुसूसी दिलचस्पी से वेलकम बोर्ड खुश आमद कमान का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मरकज कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन सदर आरमूर मोइनुद्दीन, मजलिस सदर आरमूर ज़हीर, अहले हदीस कमेटी सदर खलील, आरमूर समाजी कारकुन गांधी अबुल हसन, आमीना मस्जिद कमेटी के नायब सदर शाकिर,
नुमाइंदा काउंसलर सईदाबाद सैयद अतीक, मरहूम अली मोहसिन हजरमी के फर्जंदान असद हजरमी, उस्मान हजरमी, कांग्रेस पार्टी लीडर साजिद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतमद खालिद के अलावा दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खुशी का इजहार किया। इन तमाम का उस्मान अली हजरमी ने गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। जिसको हमारे वालिद साहब ने हमारे दादा के नाम पे बनाया गया था, सैदाबाद कॉलोनी, जिसका निशान आज तक नहीं था। 15 साल से वायदे नियायदे हो रहे थे। आज 15 साल के बाद ये वायदा जो है तो पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है तो इसमें जो भी जिसकी भी इसमें कोशिश शामिल है, जैसे हमारे माइनॉरिटी काउंसलर्स हैं जहीर साहब और इम्तियाज़ साहब, फयाज साहब, शेख मुन्नू साहब और अतीक साहब, और इसके अलावा जो भी हमारे कायदीन हैं, महमूद अली साहब, हबीब भाई, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें सपोर्ट करें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस तारीख में उनका नाम भी रहेगा साथ में। जैसा सैदाबाद जब तक रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक इनका नाम भी रहेगा कि भाई ये कमान ये लोग बनाए थे। मुझे बनाना तो कमान कोई भी बना सकते, कभी बना सकते, और अल्लाह मियाँ इनको शर्फ दिया। और हमारे मरकज़ कमेटी के सदर मोइन साहब का भी शुक्रिया कि अपना ताउन और टाइम देकर इसमें कोशिश कर रहे हैं। मैं इस अल्फाज से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। खुशी और मसरत का मौका है, क्योंकि ये जो कमान है ये एक मैं समझता हूँ सईदाबाद की आवाम का एक देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है, जिसको हमारे साथी काउंसलर जनाब अतीक साहब की बहुत कोशिश थी, और साथ ही साथ इसके अंदर कई रुकावटें भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जद्दोजहद थी और उन्होंने कहा कि मैंने ये वादा किया था कि हमारे सैदाबाद की आवाम से ये काम पूरा करूँगा। इसलिए आखिर वक्त है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये काम हो रहा है, तो सैदाबाद की आवाम के लिए बहुत ही पुरमसरत मौका है, और साथ ही साथ हजरमी फैमिली के लिए भी पुरमसरत मौका है। हमारे जनाब उस्मान साहब, सईद साहब हजरमी और इनके तमाम भाइयों और अहले ख़ानदान के लिए खुशी का मौका है। तो मैं इस मौके पर सैदाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो कमान का जो देरीना ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपनी निशानियों को बरकरार रखने के लिए काम करेंगे। बिजली सारिफिन के मसाइल को हल करने के लिए CGRF का इनेकाद किया गया। बिजली की फ्राहमी में किसी भी किस्म की परेशानी की शिकायत फोरम पर की जा सकती है। CGRF चेयरमैन ए नारायण का बयान। बांसवाड़ा में बरकी सारिफिन के मसाइल के हल के लिए पावर हाउस में तेलंगाना नॉर्थ रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सिरे एहतमाम CGRF का इनेकाद किया गया। इस मौके पर CGRF के चेयरमैन ए नारायणा ने कहा कि बिजली सारिफिन के मसाइल को हल करने के लिए बुनियादी मकसद के साथ मुनाकिद किए गए इस फोरम में अगर बिजली की फ्राहमी में कोई कमी है तो वो इस फोरम को शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने CGRF से शिकायत की उनके मसाइल हल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मेम्बरान किशन, महकमा बिजली के SC श्रवण कुमार, DE प्रभाकर, AE संतोष, सब डिवीजन अमला दिगर भी मौजूद थे। మీడియా ద్వారా ఎనీ మీడియా ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ ఈ రోజులలో అందరికీ కూడా సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి సెల్ ఫోన్లో కానీ ఆ ఫోన్ ద్వారా కానీ మా నంబర్కి మీరు మెసేజ్ పంపిస్తే దాన్ని మేము రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం. దానికి తగిన సొల్యూషన్ అనేది కన్సూమర్స్కి 24 గంటల్లో మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎలాంటి కాంప్లైంట్స్ ఉన్నా కానీ మీ ద్వారా వచ్చినా మాకు సంతోషం. కానీ ఎట్టకేలకు ఏంటంటే కన్సూమర్ హ్యాపీగా ఉండాలి, 24 గంటలు సప్లై తీసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ కానీ, ఇండస్ట్రీ కానీ, డొమెస్టిక్ కానీ, నాన్ డొమెస్టిక్ కానీ, ఎనీథింగ్ ఎవరికైనా కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం చేయడానికి మనం ముందుకు సాగిపోతున్నాం. KGBV नॉन टीचिंग वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मसाइल के हल के लिए कारकुनान हैदराबाद पहुंचे और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे। प्रोग्रेसिव KGBV नॉन टीचिंग वर्कर्स यूनियन स्टेट कंस्ट्रक्शन जनरल बॉडी मीटिंग और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर KGBV नॉन टीचिंग वर्कर्स निजामाबाद शहर से हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि वो रियासत में KGBVs में काम करने वाले गैर तदरीसी और कारकुनों के मसाइल को हल करने के लिए यूनियन स्टेट कमेटी की सरपरस्ती में रियासती प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे। KGBV नॉन टीचिंग मजदूरों की उजरत में इजाफा और दीगर मसाइल को हल किया जाएगा। इसी तरह रियासती कमेटी की तश्कील के लिए जनरल बॉडी का इजलास मुनाकिद करके नई रियासती कमेटी का इंतखाब किया जाएगा।
इस ढांचे की जनरल बॉडी के इजलास में KGBV गैर तदरीसी और कारकुनों के मसाइल के हल के लिए एक तहरीकी सरगर्मी वाज़ेह की जाएगी। हैदराबाद जाने वालों में यूनियन रियासती नायब सदर ऐश्वरी, जिला सदर, सेक्रेटरीज हेमलता, सुमलता व दीगर शामिल थे। నాన్ టీచింగ్ వర్కర్ల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్ల ఐక్యత అమలు చేయాలి KGBV నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లకు వేతన పెంపును వెంటనే అమలు చేయాలి रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए नाफिज की गई हर फलाही स्कीम को अहल किसान तक पहुँचाने के लिए हुक्काम इक़दामात करें। रियासती किसान कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर का मशवरा। रैतू भरोसा और खर्च माफी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादले ख्याल। हैदराबाद शहर में तेलंगाना एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर स्टेट ऑफिस में स्टेट फार्मर कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद की स्कीमों, किसानों की यकीन दहानी व दीगर पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले रियासती किसान कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर ने कहा कि किसानों के खर्च माफी, रैतू बंधु और किराएदार किसानों के मसाइल को मीटिंग में तवज्जो दिलाया गया। ओहदेदारों ने तजवीज़ दी कि ऐसे इक़दामात किए जाए कि किसानों की फलाह व बहबूद के हवाले से हर फायदा मुस्तहक़ किसानों तक पहुँचे। इजलास में इस पर तबादले ख्याल किया गया। కొందరు తెలిసినటువంటి రైతులు ఏంటంటే క్రాస్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి రైతులు డబుల్ క్రాస్ పెట్టాలి, సింగిల్ క్రాస్ లో ఈ హైలీ इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली फलाही स्कीमात से मुस्तहिक अवाम को फायदा पहुंचाया जाए, ओहदेदारान खास तवज्जो दे। जिला कलेक्टर हनुमंतु। दीनी इज्तिमा अल्लाह से खैर हासिल करने का जरिया। 19, 20 और 21 जनवरी को निजामाबाद CRPF कैंप ग्राउंड पर तबलीगी जमात का से-रोज़ा दीनी इज्तिमा, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल। फर्जंदाने तौहीद से शिरकत और मेहमानों की नुसरत की अपील। MIM की मौसर नुमाइंदगी। सलम अकीद इलाकों में 2 रेशन शॉप्स की मंजूरी। MIM का कारनामा। MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो जिला कलेक्टर से MIM का इज़हार तशक्कुर। अवाम को राहत, अवाम में मसरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।